As you know, that slowly and gradually RBI Grade B 2025 examination is approaching. So if you are someone who is planning to prepare for 2025 RBI Grade B examination, it is important for you to have a dedicated study plan in order to proceed further. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash, and in this video we are going to discuss the 5-month study plan and the sources from where you have to prepare. So if you are someone who is preparing on your own, if you are doing self preparation, so in this video I'll be telling you the important sources for all the component of the RBI Grade B examination with the 5 months detailed study plan ki how you have to proceed with respect to the individual components in coming 5 months, considering that you are starting your preparation from 15th of December. So without wasting much time, guys, let's proceed. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, if you are a serious aspirant, so you must have a dedicated study plan. Accordingly आप उसके हिसाब से प्रोसीड करिए. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम रैंडम वे में पढ़ते हैं कि यार पहले मैं ये खत्म करता हूँ, फिर हमने वापस से किसी और कंपोनेंट को चालू कर लिया, फिर बीच में उसको छोड़ के फर्दर वी स्टार्ट समथिंग न्यू, राइट. तो इस तरीके से चीजें हौच पौच हो जाती हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस एंड ट्रैक योर प्रिपरेशन जर्नी, राइट. सो यहाँ पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 5 months डेडिकेटेड स्टडी प्लान. वी आर कंसीडरिंग कि यहाँ पे 5 months में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. उसके बाद यू विल हैव टाइम फॉर द रिवीजन इटसेल्फ. Now let's start with the first of all the study plan, that how you have to proceed if you are someone who is starting the preparation at this point of time. Yeah, if you are planning to start the preparation at this point of time, so I'm considering that you are starting your preparation from 15th of December, right? So here we have divided into 4 categories the entire 5 months. तो पहले जो हमने 3 कैटेगरीज है वो हमने 1.5 months मतलब 1.5 महीने के हिसाब से डिवाइड किया. लास्ट वन इज बेसिकली यहाँ पर 15 days की है. सो लेट्स स्टार्ट विद the first phase here, that is from 15th December till 31st of January 2025, right? तो यहाँ पे first of all what you have to do, you can start with reasoning part, right? reasoning part आपको यहाँ पे start करना है. ना यहाँ पे एक चीज ये भी कि आप बोलेंगे सर मुझे कौन से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप कौन से स्टार्ट कर सकते हैं. I'm just giving a framework, right? If you have a framework तो उसके हिसाब से you can make your own strategy. आप उसमें modification कर सकते हैं, आप उसमें alteration कर सकते हैं. But the thing is you must have a framework and this is the framework that I am providing. Suppose आपकी reasoning बहुत strong हो सकती है, right? आपकी quant weak हो सकती है. You can start with the quant itself, so that's not an issue. So here first of all what you have to do, यहाँ पे आपको daily आपको 4 काम करने डेली, ठीक है. डेली आपको 4 चीजें करनी है. 2 तो आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं फेज 1 के, एक फेज 1 का और एक फेज 2 का. करंट अफेयर्स को आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन जब से आप स्टार्ट करें करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. एंड ऑल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, न्यूज़पेपर रीडिंग गाइस. न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, ठीक है. करंट अफेयर्स को अगर हम अवॉइड भी करें तो वहां पे आपकी ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, आपके आंसर राइटिंग के लिए, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए, इस सारी चीजों के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल what you will do, you will cover 2 subjects, one from phase 1 and one from phase 2. Simultaneously you would be preparing for both phase 1 as well as phase 2. रीजनिंग phase 1 का एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे phase 2 का. स्टार्ट विद द मैनेजमेंट. छोटा कंपोनेंट है, जल्दी खत्म हो जाएगा और पूरा स्टैटिक है तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे भी नहीं. बट हाँ, आराम से कवर करिएगा इसको, क्योंकि अगर आपने इसको याद करने की कोशिश की देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर द मैनेजमेंट पार्ट. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एग्जाम्पल्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल एग्जाम्पल्स, राइट. तो वहां पे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. सो रीजनिंग, मैनेजमेंट, देन करंट अफेयर्स एंड देन न्यूज़पेपर, राइट. ये आपको फर्स्ट 1.5 months में करने हैं, 1.5 months में. तो गाइज यहाँ पे करंट अफेयर्स में यू वुड बी कवरिंग दिसंबर एंड जनवरी करंट अफेयर्स इस फेज में. एंड न्यूज़पेपर तो यू हैव टू रीड रेगुलर बेसिस, ठीक है. तो यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व कि इफ आई एम सेइंग दैट मैनेजमेंट यू हैव टू कंप्लीट, विच मीन्स इफ आई एम सेइंग मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सिर्फ आपको कवर नहीं करना है, यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग पार्ट, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना. डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट इट कि मैं इसको बाद में कर लूंगा, मैंने आंसर बहुत लंबे समय तक लिखा है, मैंने पूरे कॉलेज में आंसर लिखा है, मैंने स्कूलिंग में आंसर लिखा. वो चीज़, वो अप्रोच छोड़ दीजिए. वहां पे आपने लिखा, वहां पे कोई कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट नहीं था, वहां पे एक सेट कट ऑफ था, उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना था. बट यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में आंसर लिखना, आपका कॉम्पिटिशन साथ वाले से, ठीक है, आपको उससे ऊपर निकलना है. तो वहां पे उस माइंडसेट से, उस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखते हुए आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है. सो जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद यू वुड बी कवरिंग द ऑब्जेक्टिव पार्ट, यू विल बी गिविंग द मॉक टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक एज वेल एज द डिस्क्रिप्टिव. तो मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव का भी एंड मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव का भी. डेली रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको आंसर राइटिंग पार्ट की. तो ठीक है. सो इन द फर्स्ट फेज फ्रॉम 15 December till 31st January 2025 you would be covering reasoning on a regular basis.
मैनेजमेंट रेगुलरली, करंट अफेयर्स जो भी आपको टाइम मिल रहा है 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, यू वुड बी कवरिंग द करंट अफेयर्स एंड द न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड, right? Moving on to the second phase starting from 1st February to 15th of March 2025. So here what you would be covering, you would be covering the quant component, right? Then you would be covering finance component, and if I'm saying finance component, which includes answer writing as well. So if you are not doing answer writing, so I would be considering that you have not completed this component. So you have to cover the answer writing as well, you have to practice the answer writing as well. So quant you would be covering on a regular basis, फाइनेंस यू वुड बी कवरिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, करंट अफेयर्स यू कीप कंटिन्यूइंग रीडिंग दैट, तो फेब्रुवरी और मार्च से करंट अफेयर्स यू वुड बी कवरिंग इन दिस फेज, एंड न्यूज़पेपर तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर कितना टाइम मुझे देना है, सो ऑन एन एवरेज इफ यू आर गिविंग 5 to 6 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उतने में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ऑन एन एवरेज आई एम सेइंग, सपोज इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, इफ यू आर नॉट एबल टू डिवोट 5-6 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस वीक डेज में, बट वीकेंड्स में आप वहां पे अच्छा टाइम दे सकते हैं, 10-11 घंटे करके, यू कैन मेक एन एवरेज ऑफ 5 to 6 आवर्स, ठीक है। तो उतना अगर आप कर रहे हैं, सो दैट इज इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर द सिलेबस, ठीक है, टू कंप्लीट द सिलेबस। तो यहाँ पे लगभग 2 आवर्स यू कैन गिव फॉर द रीजनिंग पार्ट, 2 आवर्स गिव फॉर द मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। 1.5 आवर्स यू कैन गिव यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए, और यहाँ पे लगभग 30 to 45 minutes you can give for the newspaper preparation, ठीक है, 30 to 45 minutes. तो same strategy you would follow for here phase 2 also, in the basically second phase also which we are discussing. तो quant, finance, current affairs of February and March month, and the newspaper you have to cover. Moving on to the third phase which starts from 16th of March till 30th April 2025. So you have to revise the reasoning and quant portion, क्योंकि बहुत ही difficult part है यहाँ पर reasoning और quant का जो है, ठीक है। आपको आता होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द लेवल विच इज आस्क्ड इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, बिकॉज रीजनिंग इज सच अ कंपोनेंट जो कि एक 60 मार्क्स का कंपोनेंट भी है। सो ट्राई टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स देयर, बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स देयर, सो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ एज वेल। तो यहाँ पे यू हैव टू कीप रिवाइजिंग द रीजनिंग एंड कॉन्ट, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक्स आपके अगर नहीं भी हुए होंगे तो दैट यू कैन कवर इन दिस फेज इटसेल्फ, ठीक है। Then ESI you have to cover in this 1.5 months period. ESI you have to do same strategy which you have followed for the management, which you would be following for the finance. Same strategy you have to follow for the ESI, that you have to cover the topic, you have to practice the objective part and the descriptive part topic wise, ठीक है। And along with that guys, you have to refer the previous year paper as well, so that you can understand कि whatever you are reading, whatever you are practicing, whether it is up to the requirement of the exam or not, ठीक है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट first of all you have to go through the previous year paper so that you can understand whether it is according to the requirement of the exam or not. Then further current affairs you will keep continuing there. So यहाँ पे you will cover the current affairs of March and April month and the newspaper reading, right? तो यहाँ पे current affairs तो आपको regularly पढ़ना है, तो एक component आपका automatically यहाँ पे prepare हो रहा है till the examination, आपको करना ही करना है। And 2 subjects, one from phase 2, one from phase 1 and one from phase 2 you have to take, ठीक है, on a regular basis. Time I have told you basically, so if you are able to devote 5 to 6 hours, then आपके लिए यहाँ पे काफ़ी easy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी easy हो जाएगी जर्नी आपके लिए कवर करना, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आते आते आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट 15 डेज में व्हाट यू वुड बी डूइंग, यू वुड बी रिवाइजिंग द कंटेंट रीजनिंग, जो कि आपने फेज 3 में ही स्टार्ट कर दिया था। 4th फेज में आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपका रिवीजन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, देन यू कैन रिवाइज इन दिस पीरियड इटसेल्फ। फर्दर यहाँ पे फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट का रिवीजन यू वुड बी कवरिंग, क्योंकि इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टैटिक पार्ट, ठीक है। स्टैटिक पार्ट इज हैविंग द वेटेज ऑफ अराउंड 60 to 70% इन द फाइनेंस पार्ट, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट आपको वापस से रिवाइज करना, जो आपने यहाँ पे कवर किया था, वो 15 डेज वुड बी इनफ फॉर यू टू रिवाइज द थिंग्स फ्रॉम द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ईएसआई का रिवीजन कैसे करना है। देखिए ईएसआई का स्टैटिक वेटेज है कंपैरेटिवली कम है, करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, तो करंट अफेयर्स तो आप रेगुलर बेसिस पर कर ही रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, एंड दैट वुड ऑल्सो कवर द करंट अफेयर्स आस्क्ड इन द ईएसआई कॉम्पोनेंट। रही बात स्टैटिक कॉम्पोनेंट की, तो यहाँ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो यू कैन बेसिकली रिवाइज इट आफ्टर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नोटिफिकेशन भी आ सकता है, तो नोटिफिकेशन बाद यू वुड बी हैविंग अराउंड 50 to 60 डेज, तो वहां पर भी यू कैन रिवाइज द ईएसआई पार्ट। अगर नहीं तो फेज 1 के बाद भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बार तो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है, राइट। फर्दर यहाँ पे देन करंट अफेयर्स यू वुड बी कवरिंग इन दिस पीरियड, मई मंथ का करंट अफेयर्स, राइट। जितना भी 15th मई तक का जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो आपको कवर करना रहेगा, और न्यूज़पेपर यू हैव टू कीप रीडिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ते ही रहना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज
कि यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि सर इंग्लिश वाले कंपोनेंट की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला और फेज 1 इंग्लिश वाला, तो फेज 1 इंग्लिश के कंपोनेंट को देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, राइट। व्हाट यू कैन डू, you can follow the reverse engineering approach. What is the reverse engineering approach? The thing is you will be giving the mock test of the English component और उसी mock test से बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ भी रहे हैं, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन इफ समवन इज वीक, उन्हें लग रहा है कि यार मैं बहुत ही वीक हूँ, ठीक है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, सो इन दैट केस यहाँ पे इस फेज में दे कैन रिप्लेस इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन ना करके आप यहाँ पे इसको इंग्लिश वाला कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, यहाँ पे गाइज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द एसे राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आंसर राइटिंग तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। सेम अप्रोच यू हैव टू अप्लाई इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बट आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ऑल्सो व्हेन यू विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर पार्ट, वहां से ट्राई टू समराइज, ट्राई टू मेक द प्रेसी द ऑफ द एडिटोरियल्स, वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ पर यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस इट, और साथ ही साथ वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग भी आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो, कि आपने एडिटोरियल वहां पे चैट जीपीटी को बेसिकली वहां पे पेस्ट कर दिया, एंड यू कैन आस्क की फ्रेम 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ, एंड उसके बाद आप उसको आंसर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगले आने वाले 5 मंथ्स में आपको अप्रोच रखनी है, स्टडी प्लान आपको बनाना है। बट फ्रेंड्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग योर ओन स्टडी प्लान, ठीक है, अगर आपके पास अपना स्टडी प्लान है, देन डू फॉलो दैट स्टडी प्लान, दैट विल वर्क फॉर यू। उसको फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी आपने अपने हिसाब से बनाई है। एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटजी, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक फ्रेमवर्क मिल जाए, एक स्टडी प्लान मिल जाए, सो दिस स्टडी प्लान विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपके पास अपना स्टडी प्लान है, अपनी स्ट्रैटेजी है, देन डू फॉलो दैट, वो आपके डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। नहीं है तो यू कैन फॉलो दिस गाइज, बहुत क्रूशियल रहेगा, टाइम पे आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप ट्रैक पर भी रहेंगे, चीजें इधर उधर भी नहीं होंगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहले क्वांट पढ़ सकते हैं, आप पहले फाइनेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अगर आप मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको आप बाद में कर लीजिए, पहले फाइनेंस वाला पार्ट कर लीजिए, ठीक है, या पहले ईएसआई वाला पार्ट कर लीजिए। द थिंग इज कि दिस कैन बी चेंज, दिस कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड योर रिक्वायरमेंट्स, बट दिस इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क दैट you may have, जहां पर बेसिकली आप इसके अकॉर्डिंग you can start the preparation for 2025 RBI grade B examination. Now moving on to the sources part guys, so if you are doing self preparation, then it is very important for you to prepare from the right source, ठीक है, right source से preparation करना is very important। अगर आप right source से preparation नहीं कर रहे हैं तो फिर होता क्या एग्जाम में, एग्जाम के बाद हम बोलते हैं कि यार एग्जाम पता नहीं कहाँ से आया है। एग्जाम बिल्कुल सही आया है, उसकी वही रिक्वायरमेंट है, वही पैटर्न है, वही ट्रेंड है, बट द थिंग इज आपने उसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं किया, आपने सही सोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, राइट। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। इफ यू आर हैविंग एनी मेंटोरशिप प्रोग्राम फिर तो कोई इशू नहीं है, बट इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन देन इन दैट केस these sources are going to help you. First of all, if I tell you about the current affairs, so current affairs में there are different areas. So in the RBI grade B, there are different areas in the current affairs. For example, schemes हो गया, reports हो गया, RBI updates, union budget, economic survey, ESI current affairs, finance current affairs, other current affairs. So all these are the areas in the RBI grade B examination current affairs part, right? तो यहाँ पे जो other current affairs वाला part है, this will not be asked in the phase 2, और इसके अलावा each and every part will be the part of phase 2 also. So the very good thing is that the current affairs that you would be preparing for phase 1, that would be हेल्पफुल फॉर द फेज 2 ऑल्सो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। तो करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई थी रेगुलर कवर करने की, तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि आप रेगुलरली इसको पढ़ते रहेंगे, आपकी फेज 1 की भी तैयारी होगी, फेज 2 की भी तैयारी होगी, एंड ऑल्सो यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर फेज 3, दैट इज इंटरव्यू, ठीक है, वहां पर भी करंट अफेयर्स का काफी रोल रहता है। सो सेम करंट अफेयर्स यू हैव टू यूटिलाइज फॉर डिफरेंट स्टेजेस। ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल मत रखिएगा मैं करंट अफेयर्स पहले मैं फेज 1 के लिए पढ़ रहा हूँ, वापस से आई वुड कंप्लीट द एंटायर करंट अफेयर्स फॉर द फेज 2, देन वापस से आई वुड बी कवरिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग स्ट्रैटेजी है, और इसकी कॉस्ट में दूसरे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपके
सफर होंगे, राइट। तो इसलिए आपको जो फोकस रखना है वो रखना है करंट अफेयर्स को इस तरीके से डे वन से ही, कि ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, फेज वन भी, फेज टू भी, सारी चीजें आपको ध्यान रख के एक ही बार करंट अफेयर्स यू हैव टू कवर। देन गाइस यहाँ पे दीज आर द एरियाज। अब इन एरियाज को कवर कैसे करना है, यू हैव टू टेक द वन न्यूज़पेपर जो मैंने अभी आपको बताया था स्टडी प्लान में। न्यूज़पेपर यू कैन टेक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, लाइव मिंट, ठीक है, देन इकोनॉमिक टाइम्स, दे ऑल आर वेरी गुड न्यूज़पेपर। इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, सारे के सारे मत पढ़ने बैठिएगा, अदरवाइज पूरा दिन आप सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे। कोई भी एक न्यूज़पेपर, अब वो कैसे चूज करना है, कौन सा न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पे एक हफ्ते में आप दो दिन सारे न्यूज़पेपर आप कवर करिए, ठीक है। 4-5 न्यूज़पेपर है, उसको 8-10 दिन तक आप एक बार पढ़िए, 2-2 दिन करके। उसके बाद आपको जिसकी भी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है ना, एक कनेक्ट बन जाता है किसी भी न्यूज़पेपर के साथ। जैसे पर्सनली आई लव हिंदू, मुझे हिंदू पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। कुछ लोगों को इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लाइव मिंट अच्छा लगता है। सो कहने का मतलब है सारे ही बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, सब में ही आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। सब में आपको एडिटोरियल वाला जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो आपका जिस न्यूज़पेपर के साथ एक कनेक्ट बैठ रहा है ना, उसको पढ़ना है आपको, राइट। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक हफ्ते 10 दिन का टाइम देकर, एक हफ्ते 10 दिन तक सारे न्यूज़पेपर एक बार ट्रायल कर लीजिए, देन यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली कि यार ये न्यूज़पेपर मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, उसको फिर आपको कंटिन्यू करना है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, यहाँ पे पीआईबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कवरिंग द स्कीम्स, आपको वहां पे मिल जाएंगी। देन ईएसआई करंट अफेयर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो पीआईबी विल बी हेल्पफुल। अदर करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे काफी हद तक मिल जाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन आरबीआई वेबसाइट यू हैव टू विजिट। आरबीआई वेबसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि आरबीआई रिलीज करता है, एंड ऑल्सो आरबीआई नोटिफिकेशन, आरबीआई सर्कुलर्स, ठीक है, जो भी एनुअल रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, वो सारी चीजें यू विल गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट ओनली। Moving on to the quantitative aptitude sources, guys. तो यहाँ पे there are two important sources I can say, that is Arun Sharma and the Dr. R.S. Agrawal. But you have to refer only one. कोई भी इनमें से any of them you have to refer. So if you are having लिटिल बिट नॉलेज, लिटिल बिट आपका अगर कोई फाउंडेशन है, इन दैट केस यू कैन रेफर अरुण शर्मा। अगर आपका बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं क्वांट कंपोनेंट में, देन यू कैन रेफर द डॉक्टर आर एस अग्रवाल। ये बिल्कुल बेसिक से है। बट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज बुक्स आर नॉट ओनली डेडिकेटेड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम को केटर करती है यहाँ पर, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू that you have to prepare for the RBI grade B examination. So after covering topics from these books, after covering topics from any of these books, you have to refer the previous year paper, guys. Then only you will be able to understand कि whether you are going in a right direction or not, whether you are कैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम और नॉट। अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो टाइम एंड डिस्टेंस का सेम क्वेश्चन आपके बैंक के क्लर्क के एग्जाम में भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, बट द थिंग इज लेवल का बहुत डिफरेंस रहेगा। तो वो लेवल आपको कैसे पता चलेगा? आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। सो इनमें से कोई भी एक बुक, दोनों बुक मत रेफर करिएगा, एनी ऑफ देम, राइट। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक, ना कि पूरा कंपोनेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग वन टॉपिक, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, so after covering each topic you have to refer the previous year paper. So if you can get topic wise previous year paper, then it would be very good for you, so that you can directly refer the questions asked from that particular topic. Moving ahead with respect to the reasoning, guys, so reasoning के लिए again this is a very good book, that is Dr. R.S. Agrawal की Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning. Again that's a very good book, but the same case वहाँ पर भी है कि this book is not solely dedicated for the RBI Grade B examination. बहुत सारे multiple exams इसमें से cover होते हैं. So again the same strategy, after covering that particular topic you have to refer the previous year paper so that you can understand ki what is the requirement of the examination and whether you are matching with that requirement or not, right. Then moving on to the English part, guys. English के लिए I told you कि what you can do, simply you can have a reverse engineering approach, which means you can directly give the mock test, ठीक है। उस mock test को देते देते आपको practice करनी है। But if someone is there who is feeling that sir I am very weak at English, तो in that case what you can do, you can simply refer this book. तो यहाँ पे सारे topics आपको मिल जाएंगे। तो this is General English by SP Bakshi, राइट। अगेन सेम थिंग कि जब आपको टॉपिक खत्म करना है उसके बाद यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप ये चीज इंश्योर कर सके कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फेज वन, गाइज। इफ आई मूव टू फेज टू पार्ट, तो फेज टू में फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड ईएसआई इज देयर। सो मैनेजमेंट इज कंप्लीटली प्योरली स्टैटिक, ठीक है, मैनेजमेंट पूरा स्टैटिक पार्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे यू वुड बी कवरिंग द मैनेजमेंट पार्ट, और मैनेजमेंट के ही कंपोनेंट में एक एथिक्स वाला पार्ट भी है, दैट यू कैन कवर फ्रॉम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बी एन घोष। यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। दीज टू बुक्स आर देयर जो कि आप रेफर कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बल्कि बुक्स है, ठीक है, ये क्योंकि ये किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई, ये मैनेजमेंट के लिए है, ये एथिक्स के लिए है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड गेट जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं। सो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है, यू हैव टू पेस्ट इट इन द फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, यू हैव टू रेफर दिस, ठीक है। एक टॉपिक वहां से देखिए, एक टॉपिक यहां से कंप्लीट करिए, टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, ठीक है, बट उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप वहां पर जाएंगे तो वो कोई लिमिटलेस है बिल्कुल, तो वहां पर आप जाएंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, और सेम स्ट्रेटजी आपको यहां पर भी रखनी है। जो टॉपिक्स सिलेबस में है वही टॉपिक्स आपको इन बुक्स में से कवर करना है, एंड आफ्टर कवरिंग ईच टॉपिक यू हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर पेपर। मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर कॉम्पोनेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक, ठीक है, आपको हर टॉपिक के लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखना है, एंड पीवाईक्यू मतलब बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ताकि आपको जब पता चलेगा टॉपिक नंबर फर्स्ट के बाद तो यार डिस्क्रिप्टिव में ये डिमांड थी बट आई हैव नॉट रेड दिस, तो फिर उसके बाद आप अपने सेकंड चैप्टर में उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे कंपोनेंट के बाद देखा और आपको अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक लगी, यार ये मैंने इस लेवल पर प्रिपेयर नहीं किया, वापस से यू हैव टू रिपीट द एंटायर कंपोनेंट, एंड दैट विल बी अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक के बाद यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट गाइस, फाइनेंस में टू कंपोनेंट्स, टू सब कंपोनेंट्स आर देयर, दैट इज करंट एंड द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। आई टोल्ड यू कि स्टैटिक वाला पार्ट जो है उसका वेटेज ज्यादा है, करंट वाले पार्ट का वेटेज कम है इन द फाइनेंस पेपर। तो यहाँ पे सोर्सेस की इफ आई टेल यू, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं फॉर द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द फाइनेंस सिलेबस गाइस। और यहाँ पे फाइनेंस का जो सिलेबस है बहुत ही जनरल फाइनेंस है, दिस इज नॉट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज नॉट द कोर फाइनेंस, दिस इज जनरल फाइनेंस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल फंक्शंस ऑफ एनबीएफसीज, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, जो बेसिक प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट, ये सारी की सारी चीजें, प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सारी की सारी बेसिक चीजें जो कि आपको शायद पता भी होंगी, बस एक थोड़े से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में व्हेन यू वुड बी कवरिंग, तो आप यहाँ पे सिलेबस कर लेंगे। यहाँ पे अगेन वही सेम स्ट्रेटजी गाइस कि ये बुक्स जो हैं सिर्फ यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं, ना ही फाइनेंस के हिसाब से बनाई गई हैं। देयर आर सेग्रीगेटेड टॉपिक्स दैट यू विल गेट इन ऑल दीज बुक्स, ठीक है। तो इन सारे ही बुक्स में यू विल गेट द बेसिकली सेग्रीगेटेड टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, दैट टॉपिक यू हैव टू कवर फ्रॉम दीज बुक्स, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूं रमेश सिंह की, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी, बहुत बल्कि बुक है, ठीक है, 1200 प्लस पेजेस है। That is not possible for you to cover, and that is not required for you to cover, right? So in that case, what you have to do, same strategy that we have discussed in the case of management, you just have to take the topic from the syllabus and you have to complete the topic from these books. And guys, whenever you are referring any book, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि बुक जब आप भी कोई भी रेफर कर रहे हैं तो उस बुक में आपको क्या करना है, यहाँ पर उस बुक का सबसे पहले लेटेस्ट एडिशन ही आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। दिस यू हैव टू इंश्योर, दिस माइट नॉट बी द लेटेस्ट एडिशन, बस आपको यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, एंड दैट यू कैन गेट ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से आपको इजीली मिल जाएगा। और सेम स्ट्रेटजी आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर, ये स्ट्रेटजी सेम रहेगी, ठीक है, चाहे फेज 1 की हो चाहे फेज 2 की हो। प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, ये दो तो आपके पास हमेशा हर वक्त रहने चाहिए, इनकी हेल्प से ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द फेज 2 फाइनेंस का करंट पार्ट, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, करंट और स्टैटिक। सो दीज आर द सोर्सेज फॉर स्टैटिक एंड दीज आर द सोर्सेज फॉर करंट। सो अगेन वन न्यूज़पेपर, एनी ऑफ द न्यूज़पेपर आई हैव मेंशन्ड हियर, लाइव मिंट, एंड दैट कैन बी एनीथिंग, मैंने आपको बताया है कोई भी न्यूज़पेपर जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, दैट इज। देन आफ्टर दैट आरबीआई की वेबसाइट, ठीक है, फॉर आरबीआई रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं आरबीआई जो रिलीज करता है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें यू वुड बी गेटिंग दिस। फॉर एग्जांपल यूनियन बजट हो गया, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देन रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ऑल दीज रिपोर्ट्स यू कैन गेट फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट एंड नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। तो करंट के लिए न्यूज़पेपर, आरबीआई की वेबसाइट, एंड ऑल्सो दिस वन। और यहाँ पे पीआईबी भी आपको, पीआईबी भी रेफर करना है फॉर द फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है। फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको रेफर तो करना ही करना है। मूविंग ऑन टू द ईएसआई पार्ट गाइस, ईएसआई में अगेन करंट और स्टैटिक दो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे करंट का वेटेज ज्यादा है, स्टैटिक का कंपैरेटिवली कम है।
So if I tell you about the static sources here, so static के लिए you can refer the same Ramesh Singh that you would refer for the finance part. तो ये आपको यहाँ पे रेफर करनी है. तो same book will be utilized for the finance also, economics also. ठीक है, finance और ESI दोनों के लिए same book you would be referring. So for example, topic related to monetary policy, fiscal policy, balance of payment, inflation, so all these you can get from the Ramesh Singh. अच्छी तरीके से मेंशन है, तो वो आपके लिए काफी इजी भी हो जाएगा. ठीक है, साथ ही साथ पॉवर्टी वाला, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, so all these topics you will get. For the social issues part, you have to refer this book, Social Problems in India by Ram Ahuja. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड बुक. लेकिन अगेन आपको जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, दैट टॉपिक यू हैव टू डू फ्रॉम दीज बुक्स. ठीक है, अगेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक्स से कोई लिमिट नहीं है, राइट. वो बात की प्रोसेस है. पहले स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए. आफ्टर दैट इफ यू हैव टाइम यू कैन रेफर एनीथिंग, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द सिलेबस. एंड सेम स्ट्रेटेजी, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर. हर टॉपिक के बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करना है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द करंट पार्ट. ESI करंट के लिए अगेन वन न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर यू हैव टू रेफर. ठीक है, कोई भी एक न्यूज़पेपर यू हैव टू रेफर. देन यू हैव टू रेफर PIB फॉर ESI करंट अफेयर्स फॉर स्कीम्स पार्ट, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट. एंड देन यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है. प्रीवियस ईयर पेपर देखने का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. प्रीवियस ईयर पेपर जब आप करंट अफेयर्स के केस में देखेंगे, सो वो आप इसलिए देखेंगे कि वहां पे आपको ये आइडिया लगे, कोई पर्टिकुलर स्कीम अगर न्यूज में थी, कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट अगर आई है, तो वहां से कैसे कैसे डायमेंशंस हैं, कौन कौन से डायमेंशन से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो आफ्टर एनालाइजिंग दिस, व्हेन यू विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स, व्हेन यू विल बी कवरिंग द स्कीम्स रिपोर्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा यार इस स्कीम और रिपोर्ट में these are the most important dimension which I have to prepare thoroughly. ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से डायमेंशंस कम इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर. तो PYQs आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो, राइट. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ESI करंट अफेयर्स. नाउ गाइस, मूविंग ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट. तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल. आपको पहले बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक गाइडलाइन से रिलेटेड टू ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल प्रेसी राइटिंग केस में आपको टाइटल देना मैंडेटरी है, आपको पूरा आंसर एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं. सो दिस इज द बेसिक गाइडलाइन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रेसी, ऐसे एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद बेसिकली क्या करना है, आप जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे डे वन से ही, उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है. तो जैसे आपने कोई एडिटोरियल पढ़ लिया वहां पर, यू कैन टेक दैट एडिटोरियल, यू कैन पेस्ट इट ऑन ChatGPT एंड यू कैन आस्क ChatGPT टू फ्रेम सम क्वेश्चंस. उससे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं, उसी का आप ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं और उसी को आप प्रेसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. और यहाँ पे गाइस कुछ चीजें हैं, जैसे यू कैन अपलोड योर आंसर ऑन grammarly.com. तो वहां पे आप देख सकते हैं जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सो दैट यू कैन गेट टू नो एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बेसिकली रिड्यूस इट. वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी है. यू कैन यू नो द वर्ड लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, फॉर ऑल द पार्ट, वेरेवर डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज देयर, FM हो, ESI हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. रीजन बीइंग, जब आप कोई आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो हम अपनी सोच के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं. बट व्हेन दैट इज इवैल्यूएटेड बाय समवन एल्स जो कि एक्सपर्ट है, सो ही विल गिव यू मोर डायमेंशंस. ठीक है, तो आपके आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाएगा, ठीक है, आपके माइंड को ओपन अप करेगा ताकि आप और भी डायमेंशंस को कवर कर पाए. सो इवैल्यूएशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट इवैल्यूएटेड. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आपको अवॉइड करनी है. इनिशियली आप बहुत ज्यादा कमिट करेंगे, बट उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू रिड्यूस इट. ठीक है, तो वो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िएगा. Got it. So guys, this is all with respect to the study plan, 5-month study plan and the sources. And if you are someone who is having less time, जिनको लग रहा है कि यार टाइम कम है, मुझे चीजें तो अच्छी से कवर करनी, बट इन सब में सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है. So guys, do not worry, we have लॉन्च दिस RBI लक्ष्य 2.0. तो हमने लक्ष्य 2.0 यहाँ पर लॉन्च कर दिया है. एंड यहाँ से बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. रीजन बीइंग, यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग यू एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लासेस. सो इफ यू आर समवन who is from non-finance background or non-commerce background or non-economics background, or if you are someone who wants to start the things from very scratch, so guys, this is the perfect platform for you. क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस का जो हमारा बेसिकली फोकस है वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना. ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज द नॉलेज दैट यू वुड बी गेनिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स गाइज, दैट
will be with you forever and that will be helping you forever, right? Also we are focusing on knowledge enrichment. तो यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे बस सिलेबस खत्म करना है. यहाँ पे you can see 550 plus live classes we are providing and the basic objective of live classes is all these. ये वाले सारे के सारे हैं कि आप ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो, कभी फाइनेंस ना पढ़ा हो, ठीक है. एंड इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए गाइस वी हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड दिस इज माय मोस्ट फेवरेट फीचर, दैट इज लाइव क्लासेस. यहाँ पे जो एफर्ट हम लगा रहे हैं चीज़ों को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके लेमैन लैंग्वेज में रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, एक फॉर्मेलिटी करना नहीं है, बल्कि जो टाइम आप 5-6 महीने जो आप देने वाले हैं उस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है. आप उस पर ना सिर्फ एग्जाम पर फोकस करें बल्कि नॉलेज पर भी फोकस करें, बिकॉज दैट नॉलेज विल बी हेल्पिंग यू इन द इंटरव्यू पार्ट एंड ऑल्सो व्हेन यू विल गेट इनटू आरबीआई एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, तो सारी चीजें, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, राइट, यू नो वेरी वेल, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है. ठीक है, व्हाट आरबीआई वांट्स टू अचीव बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेपो रेट. आरबीआई ने भी रिसेंटली सीआरआर जो है 0.5% से कम किया है. क्यों कम किया है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइव क्लासेस में यहाँ पर समझेंगे. तो बहुत मजा आएगा गाइज आपको यहाँ पर. और अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट, 1-to-1 mentorship will be there. Whenever you feel less confident, whenever you feel lost in the preparation, you can just connect with any mentor whom you want to connect. ठीक है, आपकी मर्जी, आप जब चाहे कनेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ना सिर्फ हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, किस तरीके से एक बेहतर मार्क्स लाया सकता है, बल्कि वी वुड बी हेल्पिंग इन द इवेल्युएशन पार्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो आपको प्रॉपर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू द यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का इवेल्युएशन. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर. ठीक है, जहां पे ना सिर्फ हम आपके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करेंगे बल्कि हम आपको यहां पर बेसिकली हेल्प करेंगे किस तरीके से यू कैन फिल द डैफ, किस तरीके से आपके प्रोफाइल के हिसाब से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो आपकी प्रिपरेशन उसकी भी होगी. मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज विल बी देयर. सो बहुत सारी चीजें आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा. टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स यू वुड बी गेटिंग. सो दिस इज a comprehensive course guys. If you are having this, then beyond that you do not need to have anything. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, अगर आपके पास ये है तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स एंड बिलीव मी, क्लासेस हैव जस्ट स्टार्टेड. अभी हुई हैं 10th से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी 2-3 क्लासेस ही हुई होंगी. ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए. बहुत सारी लाइव क्लासेस अभी आना बाकी. डिटेल्ड प्लान यू कैन चेक द एंटायर ऑफरिंग्स बाय यूजिंग द लिंक गिवन बिलो. एंड गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, ठीक है, कोर्स का जो कॉस्ट है वो बेसिकली हम बहुत ही मिनिमल रख रहे हैं. उसका सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर जेन्युइनली यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट जेन्युइनली यहाँ पे ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, सो वी डू नॉट वांट कि उनके जर्नी में बेसिकली कोई ना कोई रोड ब्लॉक बने किसी भी तरीके से कॉस्ट. ठीक है, एंड दैट इज वी आर ट्राइंग टू मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल, जितना ज्यादा अफोर्डेबल हम बना सकते हैं. सो ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स. ओवर दैट डिस्काउंट वी आर प्रोवाइडिंग द कूपन कोड फैसिलिटी. सो by applying the coupon code you can have further drastic discount. So when you would be visiting the course, basically there you will be seeing the discounted price, right? and वहां पे एक ऑप्शन होगा अप्लाई कूपन का. अप्लाई कूपन के ऑप्शन को जब आप यूटिलाइज करेंगे, ये कूपन मेरा नाम है प्रकाश और दैट विल आल्सो वर्क एज अ कूपन कोड. व्हेन यू विल एंटर प्रकाश देयर, अप्लाई कूपन करेंगे, उसके बाद अगेन यू सी दैट देयर विल बी अगेन अ ड्रास्टिक डिस्काउंट ओवर द फाइनल प्राइजेस एंड दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू. सो वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे कि आपके लिए हम यहाँ पे कोर्स जितना ज्यादा अफोर्डेबल बना सके उतना ज्यादा हम अफोर्डेबल बनाएं. सो डू यूज द कूपन कोड, check the link given in the description for detailed offerings and do join the telegram group for having regular updates regarding the examination as well as important session. So this is all with respect to this video and I hope आपको चीजें पता चली किस तरीके से आप एक फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कि स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं and what sources you can refer. So we'll meet in another video guys. Till then, goodbye and happy learning friends.